But when my Urdu poetry was gone through, it was none other than lyricist Javed Akhtar who prefaced my book of Urdu poetry. So, first and foremost message, do not remain constrained with management degree. शायद आप कुछ और कारण के लिए बने होंगे, and you must try to find out what is that cause you have been brought on this earth. आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आपने यहाँ पे जो अस्तित्व धारण किया है उसके जिम्मेदार कौन है? आपको पूछा जाए तो 90% बोलेंगे पेरेंट्स है, हमको क्या पता पेरेंट ने क्या गड़बड़ किया, हम लोग तो यूं ही पैदा हो गए हैं. फॉर देम आई वुड रिक्वेस्ट टू रीड ऑन नेट, गो ऑन नेट. सबसे बड़ा बाबा गूगल बाबा है आज के तारीख में. नेट पे चले जाइए और खलील जिब्रान को पढ़िए जो कहता है कि यहाँ पर आने का जिम्मा तुम्हारा है. इट वॉज यू हु ऑप्टेड टू टेक बर्थ ओवर हियर. फिर प्रॉब्लम आता है, लड़के पूछते हैं, yesterday I was in Somaya college, people were asking, students were asking, sir, had it been the option then why we would not have taken birth in Ambani's house? गांधी नेहरू घराना वहां क्यों, यहाँ क्यों पैदा हो गए? That's a matter of managing the energy of universe. Albert Einstein theory of relativity you must be knowing. He has an answer. थोड़ा डीप में पढ़ेंगे तो पता चलेगा. ये इसलिए करना चाहिए कि जिससे तुम्हें तुम्हारे यहाँ पर होने का वजूद पता होगा. Why you are exist as a human being on this globe? And this is a basic question before young minds today, which causes even a confusion and frustration with their psychology, that why I exist. Do you know why you exist? There is some reason. James William कहता है this universe is the image of reasons. इथे कारणाशिवाय काहीही होत नाही. म्हणजे तुमच्या येण्याला काहीतरी कारण आहे. ते कारण काय आहे? ते कारण तुमच्या चेहऱ्यातच दडलेलं आहे. आप सबने आईने में अपने थोबड़े देखे होंगे. मुझे ये बताइए, इस दुनिया में तुम्हारे जैसा दिखने वाला और कोई दूसरा इंसान ढूंढ कर लाइए. I bet upon even the twin brothers and sisters do not have superimposing faces. You know why? Every face is different because every DNA is different. What is the difference? The God Almighty, how many combinations, how many populations He might have worked to get you into the shape. और तुम्हारे चेहरे जैसा कोई आदमी नहीं है भाई दुनिया में. That is the only proof that you are exclusive. You are special. And God has bestowed that speciality virtue in you, which He has not given to anybody except you in the world. Is that clear? जिसको हम जज्बा कहेंगे, तेरे भीतर कोई आवाज है, वो भीतर की आवाज बताती है. मैंने देखा है प्रोफेसर लोग जज बन के रिटायर्ड हो गए. सिंपल से टीचर थे, दे बिकम दी पॉलिटिशियन. प्यून थे, वो चीफ मिनिस्टर बन गए. What is there in destiny? Always explore yourself. Unless and until you know who you are and why you came here, what virtues you possess to justify your existence, your life will have no meaning. You must do that. And that time starts in your life henceforth after taking the degree. That time will start. अपने भीतर के आवाज को पहचानो. हम बाकी लोगों की आवाज के लिए अपना तराजू लेकर वजन नहीं करते, कभी औरों की ख्यालों से अपना खुद का व्यक्तित्व डिसाइड करते हैं. यू शुड हैव योर ओन मेजरमेंट, तब जाके पता चलेगा. और मान लो कोई ऐसी बात आती है कि आप अभी जिस एरिया में जा रहे हो, दैट्स अ बिग कॉर्पोरेट मैग्नोनिमस एरिया. यू डू नॉट नो how big is the corporate. And luckily, I'll say it's an occasion, it's an opportunity. In India, people have faith that we have a democracy.
But in fact, we converted our democracy into corporatocracy. And not only in India, all over the world. Look at Russia, look at America. अगर अमेरिका में कॉर्पोरेटोक्रेसी नहीं होती तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को भाषण करते वक्त डक नहीं बनना पड़ता. I know where to shoot a person to kill. That was I was talking about corporatocracy. Forget about everything. Corporates are very powerful. What is the strength of corporatocracy? It will be very bold to tell you, but I must tell you. Commission of perfect crime is the strength of corporatocracy. कभी कभी मुझे अपने बात पर, अपनी जनरेशन पर थोड़ी शर्म आती है, क्योंकि हमने आपको वो सब कुछ दिया जो हमारे पास था. एजुकेशन दिया, पैसा दिया, घर दिया, गाड़ी दिया, बैंक का लोन निकाल के फॉरेन में डिग्री लेने को अपॉर्चुनिटी दी. एवरीथिंग वी हैव गिवन, बट वी एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू विच वी आर अनेबल टू गिव यू और विच वी आर नॉट गिवन यू एट ऑल. कॉर्पोरेटोक्रेसी किस प्रकार से काम करती है, ये आपको कोई कॉलेज का सिलेबस, कोई डिग्री नहीं सिखाती. डिग्री तुमको प्रिंसिपल्स, थीसिस, सिद्धांत, लॉजिक, आइडियोलॉजीज, ये सारी चीजें सिखाती है. लेकिन आइडियोलॉजी को जब हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं तब पता चलता है कि बात क्या है. देयर इज ऑलवेज अ कंसेप्ट ऑफ एडजस्टेबिलिटी, कॉम्प्रोमाइज. The degree of compromise you need to decide in your mind, and it is you who will save your life. Don't remain dependent upon anybody for your future and for your successful career. It is you who will have to do it. तुमको देखना पड़ेगा. इसके लिए वो अपने वजूद को लेकर, अपने एग्जिस्टेंस को लेकर, अपने अस्तित्व को लेकर एक जुनून होना चाहिए. और आप जिस दुनिया में जा रहे हो उसमें इस जज्बे के साथ में जाना चाहिए, एक शौक होना चाहिए कि इस दुनिया में मैं कुछ करके बताऊंगा. आई विल एस्टैब्लिश माई सेल्फ, आई विल फाइंड माई ओन प्लेस इन दिस क्राउड ऑफ ट्रिलियन पीपल इन द वर्ल्ड. यू विल नॉट रिमेन कंसर्न्ड विद इंडिया. आई एम श्योर यू विल बी क्रॉसिंग बॉर्डर्स वेरी सून. इसलिए आपको ये जज्बा जो मैं बार बार कह रहा हूं ना, उसका शौक होना चाहिए. मैंने जब उर्दू पोइट्री लिखी तो बहुत लोग परेशान थे. आपके दिल में भी ऐसे ख्याल आते हो कि हम कुछ और करें. हो सकता है आप में से कोई IAS ऑफिसर हो, कोई लॉ कर ले और कोई डिग्री ले ले, और कोई कहीं चाहे और किसी फील्ड में अपना करियर कर ले. उस करियर को आपको ढूंढना होगा. और आप अगर कहते हैं कि मैनेजमेंट ही तुम्हारा करियर है, तो मैनेजमेंट के करियर को ही आपको अंजाम देना होगा उस हद तक जहां पे लोग दुनिया में तुम्हें पहचाने कि ये सत्य है, इसका नाम ये है. उस लेवल तक जाने को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. लेकिन आप लोग लकी हो, बहुत लकी हो. वो जज्बा ढूंढने का बड़ा सिंपल सा मंत्र आपको MMS ने सिखाया है. जज्बा इसलिए चाहिए कि ये शौक नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा. जुनून होना चाहिए. जब किसी से मोहब्बत हो जाती है, आंखें मिल जाती है, तो उसको मिलाने के लिए कोशिश करते हो कि नहीं करते हो? उधर जब उनसे नजर मिली, हाय 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 हाय, उधर जब उनसे नजर मिली, इधर ये दिल दीवाना हुआ है. अरे हमारी तो दुनिया बदल के रख दी यार, नजर का मिलना बहाना हुआ है. भाई MMS तो एक बहाना है यार. जिंदगी तो अब शुरू होगी. वो जंग तो कुरुक्षेत्र अब शुरू होगा. अब कुरुक्षेत्र में पता चलेगा किसमें कितना है दम. वो जमाना था
जब सबसे रईस आदमी जमीन के भरोसे तोले जाते थे, जिसके पास ज्यादा जमीन है वो सबसे ज्यादा अमीर है। उसके बाद में हम लोग लैंडलॉर्डशिप जाकर इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में आ गए। जिसके पास मशीन है, इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, वो सबसे बड़ा आदमी है। अब आप जो वर्ल्ड में जा रहे हो उस वर्ल्ड का नाम कहने के लिए इंफॉर्मेशन है, डाटा जिसको कहते हैं। एंड इंफॉर्मेशन से आगे जाकर जो प्रोडक्टिविटी आती है, जो प्रोडक्ट आता है, उसे हम नॉलेज और विजडम कहें। उस नॉलेज इंफॉर्मेशन की दुनिया में आप हो। एलॉन मस्क और बिल गेट के पास में जमीन नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, उसके पास में दिमाग है, उसके पास में डाटा है। The person who has a maximum data, and that data the person has ability to convert into knowledge, is the rich man. It's a simple mantra of richness. बहुत से YouTube पे आते हैं 7 मंत्र रिच बनने के, येड़ा बनाने के धंधे लोग बहुत करते हैं। बड़े बड़े लोग क्लासेस चलाते हैं, रिच बनाने के धंधे, शेयर मार्केट में ले जाते, किधर किधर ले जाते, येड़ा बनाते, कुछ नहीं करते दूसरा, कुछ नहीं करते दूसरा। रिच आदमी, वेल्दी आदमी वही होगा जिसके पास इंफॉर्मेशन को नॉलेज में एक प्रोडक्ट के तौर तब्दील करने का हुनर है। अगर तुम्हारे पास वो हुनर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए इस दुनिया में वो जज्बा होना चाहिए। मेरे पास जमीन नहीं है, मेरे पास घर नहीं है। बहुत से कॉर्पोरेट लोग मैं देखता हूँ कपल्स इसी बात में अटक जाते हैं कि नौकरी मिल गई 60-70 हज़ार की, 1-2 लाख की, ठीक हो गया, उसके बाद में तो मैं घर खरीद लूंगा, फ्लैट बना लूंगा, EMI जिंदगी भर भरते रहूंगा, उसके बाद में गाड़ी ले लूंगा, शादी कर लूंगा, और EMI मेरे बाद में मेरे बच्चे भी भरते रहेंगे। मेहरबानी करके ये छोटे छोटे ड्रीम में मत रहना यार, ये बड़े फालतू किस्म के ड्रीम है। शेक्सपियर कहता है कि बेवकूफ़ आदमी घर बनाते हैं और अच्छे आदमी उन्होंने बनाए हुए घर का इस्तेमाल करते हैं। ये करने के लिए, इंफॉर्मेशन को प्रोडक्टिविटी में लाने के लिए तुम्हारे में वो जज्बा होना चाहिए और एक हिम्मत होनी चाहिए। वो तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें बड़ा बनाएगी। आप कहाँ से आते हो, किस जेनेटिक्स से आते हो, कौन माँ बाप है, कहाँ गाँव है, उसको भूल जाइए। अपना चेहरा याद रखिए और इतनी बात याद रखिए कि यू आर अ स्पेशल क्रिएशन ऑफ दिस कॉस्मिक यूनिवर्स एंड यू नीड टू जस्टिफाई योर एग्जिस्टेंस। इसलिए कहता हूँ कि जज्बा शौक़ शहादत का क्या कीजिए, आपको अपना सर हथेली पे लेना होगा। जज्बा शौक़ शहादत, ऐसा शौक, ऐसा जज्बा कि जिसमें शहादत हो जाए, गर्दन कट जाए तो भी चलेगा। ये मंत्र हमने छत्रपति से सीखा है जब कुछ नहीं था। आप सब लोग टीनेज पार किए हुए हैं, यू क्रॉस योर टीनेज, लेकिन आप टीनेज में झांक कर देखिए, शायद आपका टीनेज आपको पुकार रहा है उस थॉट के लिए जो थॉट तुम्हारा करियर बनाने वाला है। ये सारे थॉट टीनेज में आते हैं। आप टीनेज से ज्यादा दूर नहीं हो, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं, काइंडली लुक बैक एंड गो इन योर टीनेज एंड ट्राई टू फाइंड आउट what was that thought. Because when Chhatrapati Shivaji Maharaj cut his finger off left hand with taking sword in right hand and put 10 drops of blood on शंकराज पिंडी saying कि मैं स्वराज्य निर्माण करूंगा, वो छत्रपति 16 साल का था।